پیمنٹ ارینج کر دی اور ساتھ میں نے ایک کام اور کر دیا کہ اسٹامپ، یہ دیکھیں اسٹامپ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ اسٹامپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گاڑی کے لیے میں نے اسٹامپ تک اور یہ دیکھیں فل کروا لیا، صرف اماؤنٹ وغیرہ ہم نے نہیں کروائی کیونکہ وہ وجہ بتاتا ہوں کہ اماؤنٹ کیوں ہم نے فل نہیں کی۔ ہیلو السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے گاڑی لی تھی اور کیا ہوا میرے ساتھ، جس کی وجہ سے مجھے واپس بیک فٹ پہ جانا پڑا اور ڈیل مجھے کینسل کرنی پڑی۔ آپ لوگ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ اگر آپ لوگ میں سے کوئی بندہ گاڑی لے رہا ہے تو وہ اس طرح کی غلطی نہ کرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ میں نے پیمنٹ بھی کر دی تھی، کچھ کی ہوئی تھی، زیادہ نہیں کی ہوئی تھی، اور اس دن میں نے آخری پیمنٹ کرنی تھی جس دن میں ان کے پاس گیا اور پھر اینڈ پہ ہم نے ڈیل کینسل کر دی ہے۔ وہ ڈیل فائنل ہو چکی تھی بس اینڈ پہ۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کہ کس طرح میں ایک گاڑی کنفرم کر چکا تھا، ایک ہفتے پہلے میں نے اس کو دیکھی ہے، اس کو میں نے ٹوکن منی دی ہے، اس کو میں نے فائنل کر دیا گاڑی کو، پھر ایک ہفتے بعد میں جب گاڑی لینے گیا ہوں اس کو فل پیمنٹ کرنے کے لیے، تو کیا وجہ تھی جو گاڑی میں نے نہیں لی۔ میں آپ کو سٹارٹ سے بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا 2 مہینے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی کہ میں گاڑی سرچ کر رہا ہوں۔ اب اس ٹائم میں گاڑیاں دیکھ رہا تھا لیکن گاڑیاں اچھی مل نہیں رہی تھی، اور اگر کوئی تھوڑی بہت صاف ہے تو وہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ کرے 11-12 لاکھ۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، جو اس پرانی گاڑی کے لیے جو خود جس ٹائم آئی تھی 99-2000 میں جب وہ گاڑی آئی ہوئی تھی، تو اس ٹائم اس کی جو انوائس پرائس تھی وہ کوئی 8, 8.5 اور 9, 9.5 کی رینج پرائس میں تھی۔ اب 20-22 سال لوگ گاڑیاں چلا کے بھی نا ڈینٹ شٹ پڑھ کے بھی اس کے اندر ابھی بھی وہ 11-12 لاکھ مانگ رہے ہیں، کوئی 12-14 والے بھی ہے۔ تو اینی ویز مجھے گاڑی پسند آ گئی تھی، گاڑی تھی بھی پیاری۔ ہم گئے ادھر اس کو لینے کے لیے، ادھر پشاور میں نہیں تھی، ہم دوسرے شہر گئے، سوابی۔ فار ایگزامپل ہم سوابی گئے، شہر کا نام سوابی ہے۔ تو اینی ویز سین یہ تھا کہ ہم لوگ گاڑی دیکھنے گئے، گاڑی ہمیں پسند آ گئی تھی۔ میں نے ایون نہ ڈینٹر کو دکھایا نہ پینٹر کو دکھایا، کہ اس کو دکھایا، میکینک کو دکھایا، کیونکہ میرے ساتھ دوست گئے ہوا تو اس کو گاڑیوں کی سمجھ ہے، تو اس نے دیکھ لی تو بس ہم نے ڈیل فائنل کر دی۔ وہ ڈیل بھی بڑی مشکل سے فائنل کر دی، وہ اماؤنٹ کم نہیں کر رہا تھا، ہم نے بڑی مشکل سے کم کروائی ہے اس سے۔ ہم جا رہے تھے اینڈ پہ میں نے کہا کہ بس میں نہیں لے رہا ہوں گاڑی، جا رہا ہوں۔ قیمت وہ صحیح کم کر رہا تھا لیکن اتنی نہیں کم کر رہا تھا جتنے پر ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں اس پرائس رینج میں مل جائے تو ہم لے لیں گے۔ اینی ویز ڈیل میں نے اس کے ساتھ فائنل کر دی، کوئی 9-9.25 تک کی رینج میں، میرے خیال میں 9-10 تھا یا 9، ہاں اسی طرح 9-10 میں نے گاڑی فائنل کر دی تھی۔ گاڑی تھی بھی پیاری۔ تو میں نے اس کو ٹوکن منی دی، میں نے کہا میں 3-4 دن بعد آپ کو پیمنٹ کروں گا اور گاڑی لے جاؤں گا۔ گاڑی مین ویل میں واپس آ گیا تھا پشاور، اس کو ہم نے بولا کہ آپ ادھر ہمیں پشاور میں گاڑی دے جائیں، ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، کیونکہ آفس ہے، ہم نہیں آ سکتے ہیں، نہ دوست آ سکتے ہیں نہ میں آ سکتا، اس کا بھی آفس ہے، میرا بھی آفس ہے۔ اس نے کہا نہیں گاڑی کے لیے آپ کو خود ہی آنا پڑے گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ اینی ویز ہم نے بھی کہا کہ چلو اب وہ نکمہ نہیں مان رہا ہے تو ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے کیا کر دیا، میں نے پیمنٹ ارینج کر دی اور ساتھ میں نے ایک کام اور کر دیا کہ اسٹامپ، یہ دیکھیں اسٹامپ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ اسٹامپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گاڑی کے لیے میں نے اسٹامپ تک اور یہ دیکھیں فل کروا لیا، صرف اماؤنٹ وغیرہ ہم نے نہیں کروائی کیونکہ وہ وجہ بتاتا ہوں کہ اماؤنٹ کیوں ہم نے فل نہیں کی۔ سین یہ ہوا کہ ہم نے پروگرام بنا لیا کہ جمعے کو جا رہے ہیں۔ اچھا، اس پروگرام بنانے سے پہلے ایک دن یہ کیا کہ میں گیا ہوں ریسکیو 15 آفس ڈھونڈنے کے لیے پشاور میں۔ اب اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا آفس ہی نہ ملے۔ صدر میں ایک تانا ہے، کہتے ہیں کہ ادھر جا کے پتہ کر لو، ادھر ہے 15۔ ادھر گیا ہوں، گیٹ پہ بندے نے بولا کہ بھائی ادھر نہیں، آپ کو پولیس لائن جانا پڑے گا۔ اور آخر اس دن گرمی تھی اور میرے رائٹ سائڈ پہ، پیٹ کے رائٹ سائڈ پہ بہت گندی قسم کے پین ہو رہا تھا، بہت گندا قسم کا پین ہو رہا تھا۔ تو میں نے کیا کہ میں واپس آفس آ گیا، میں نے کہا پولیس لائن قریب ہے، میں نے کہا میں کل چلا جاؤں گا، اتنا مشکل نہیں ہے، میں کل چلا جاؤں گا، گاڑی کون سی ہم نے کل کرنی ہے۔ وہ تو دوست نے مجھے بولا کہ بھائی جمعے کے دن میں چھٹی کر لوں گا آفس سے، چلے جائیں گے، سنڈے کا انتظار نہیں کرتے، اور اوپر سے بینک سے پیسے بھی ڈرا کرنے تھے، تو ہم نے جمعے کا ٹائم ڈیسائیڈ کر لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، کسی طریقے سے 15 سے کام کروا لوں گا۔ میں نے اپنے شہر میں کزن کو بولا کہ آپ جا کے 15 میں پتہ کر لیں، تو ادھر کے 15 نے بولا ہے کہ بھائی 2017 سے ہم سے یہ سسٹم لے لیا گیا، اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اینی ویز میں نے کہا چلو کر لیں گے گاڑی کا، کیونکہ اس لڑکے نے بول لیا تھا کہ بھائی FIR وغیرہ سب چیزوں کا میں
गारंटी लेता हूँ, और मैंने स्टाम्प पेपर के ऊपर भी लिखा था कि अगर इसके ऊपर कोई पुरानी FIR वगैरह होगी तो मालिक इसका ज़िम्मेदार है। तो सीन ये हुआ कि रात को मैं जब सो रहा था तो मेरे जहन में एक चीज़ अल्लाह पाक ने डाल दी। जब मैं छोटा था तो मैं अखबारें पढ़ता, काफ़ी पढ़ता, अभी भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम भी पढ़ता था और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ थी, गाड़ी ये जो मैं ले रहा था ये सिंध रजिस्टर थी, CPLC। तो CPLC ये इनका सेटअप है सिंध वालों का, मेरे ख्याल में कोई है सिटीज़न पुलिस लिजान कमेटी कुछ इस तरह है, लीज इन कमेटी है कि लिजान कमेटी कुछ इस तरह है। तो वो इनका सेटअप है। तो आप कोई भी गाड़ी अगर चोरी वगैरह होती है तो वहाँ पे लोग रिपोर्ट करवाते हैं, या अगर रिकवर होती है तो आप उसको, वही उनका कुछ सिस्टम है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। मेरे जहन में एकदम ख्याल आया कि भाई रात 12 बजे का टाइम था कि भाई कुछ था तो सिस्टम तो था सिंध वालों का। मैंने नेट पे सर्च किया, जब नेट पे सर्च किया तो इनिशियली मुझे वही आ गया, व्हीकल वेरिफिकेशन। अब वो चीज़ तो मैं ऑलरेडी कर चुका था, गाड़ी लड़के के नाम पे थी और ये सारा कुछ था। नीचे की तरफ मैंने जब स्क्रॉल किया तो मुझे नज़र आ गया कि CPLC वगैरह। मैंने जाके इसको ओपन किया तो उस पर नंबर दिए हुए थे और उन्होंने कहा था कि 24/7। मैंने कहा यार इसको कॉल करूँ ना करूँ, रात 12 बजे का टाइम है, सुबह कर लूँगा। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है कर लेता हूँ कॉल, अगर उसने अटेंड कर ली तो बात कर लूँगा। वो कॉल मिल गई। अब उसको मैंने बोला कि सर ये गाड़ी है, इस तरह ये नंबर है, ये चीज़ नंबर है, मुझे बता दी इसके ऊपर कोई FIR वगैरह तो नहीं है। अब उसने क्या किया, वो मुझे बोल रहा है कि गाड़ी की दूसरी रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने कहा सर गाड़ी की तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होती है, दूसरी रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से आ जाती है? तो उसने कहा नहीं भाई इसकी दूसरी रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैंने कहा सर मुझे तो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर उसने बताई है, ये स्मार्ट कार्ड की पिक्चर है, इसमें इंजन चीज़ नंबर वगैरह। कहते नहीं। मैंने कहा सर मेरे पास नहीं है, मैं सुबह गाड़ी लेने जा रहा हूँ, मुझे बता दे कि इसके ऊपर कोई FIR वगैरह है तो वो मुझे बता दे ताकि मैं फिर गाड़ी ना लूँ। वो भी माशाल्लाह अल्लाह पाक उसका भला करे, वो भी अच्छा था। उसने 2-3 बार इंसिस्ट किया कि मुझे अदर नंबर। मैंने कहा सर नहीं है अदर नंबर, मैं सुबह उससे पूछ लूँगा, लेकिन अगर आप अभी बता सकते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। उसका अल्लाह भला करे, उसने मुझे बता दिया कि भाई ये गाड़ी 2002 में जो थी वो चोरी हो गई थी। अब गाड़ी 2002 में चोरी हो गई। अब लाज़मी बात है कोई गाड़ी आपकी चोरी होगी तो आप FIR तो करोगे, लेकिन वो इतना मसला नहीं था FIR, गाड़ी अभी भी क्लियर थी। उसने कहा कि गाड़ी आपकी क्लियर है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ थी जो मुझे उसने थोड़ा सा टेंशन में डाल दिया और इसी वजह से मैंने गाड़ी जो थी वो नहीं ली। बात ये थी फिर सुबह, हाँ अगले जब सुबह के दिन मैंने दोस्त को बोला कि उसने कहा नहीं इतना इशू नहीं है। सुबह जब हम लोग आए मैंने पैसे वगैरह और ये स्टाम्प पेपर वगैरह चीज़ें अरेंज करवाई, हम सवाबी के लिए निकल गए। अब सवाबी निकलने से पहले मैंने दोस्तों के सामने कॉल किए CPLC को दोबारा। अब वो लोग फिर मुझसे कहे कि भाई इसका सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकंड रजिस्ट्रेशन। मैंने सर नहीं है हमारे पास। वो कहते हैं कि नहीं सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर आप दोगे तो तब हम आपको डिटेल दें। एनीवेज़ मैंने मालिक को कॉल किया जिससे मैं गाड़ी ले रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारी गाड़ी का कोई सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर है? वो कह रहे नहीं भाई एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने कहा यार जा डॉक्यूमेंट्स में देख इसके ऊपर FIR है, FIR होगी फाइल में। झूठ बोल रहा था वो लड़का मुझसे। अब वो भी बताता हूँ कि वो क्या कह रहा था। ये हो सकता है कोई, वो कह रहा था कि मैंने फ़ाइल गाड़ी ली है और फाइल तक नहीं देखी है। अब ये चीज़ कोई मानने वाली है? मैं फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ले रहा हूँ तो मैं फ़ाइल के अंदर देखूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। ये मुझे कह रहा था कि भाई मैंने देखी नहीं है कि इसके सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और ये चीज़ भी नहीं देखी कि इसके ऊपर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हुआ है, नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। एनीवेज इसको मैंने कहा कि आप फ़ाइल जाके चेक करो। उसने फ़ाइल चेक की, उसमें से उसने सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के दिए। मैंने फिर CPLC को कॉल किया, उसने मुझे डिटेल दी कि भाई ये 2002 में गाड़ी चोरी हुई, रिकवर हुई है, इसके ऊपर दूसरी रजिस्ट्रेशन नंबर से इन्होंने गाड़ी दोबारा रजिस्टर करवाई। मुझे टेंशन थोड़ी सी पड़ गई। एनीवेज हम चले गए उस बंदे से गाड़ी लेने के लिए। हमने कहा भाई, दोस्त ने कहा बस CPLC वालों ने कहा कि गाड़ी क्लियर है, दोस्त ने भी कहा कि जब क्लियर है तो फिर लेने चलते हैं। हम जब गए उधर गाड़ी के लिए, फिर मैंने उस लड़के से बात की। मैंने कहा तूने मुझे बोला था कि गाड़ी मेरी बिल्कुल क्लियर है, कोई FIR वगैरह कुछ नहीं है, ये चीज़ तो तूने मेरे से छुपाई है। वो कहते नहीं यार मैंने फ़ाइल देखी नहीं है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। मैंने कहा यार ये क्या बात आप कर रहे हो कि एक चीज़ आप गाड़ी ले रहे हो और आपने वो फ़ाइल तक नहीं देखी है। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो जिस प्राइस पे मैंने आपके साथ गाड़ी डन करवाई थी उस टाइम आपने मुझे बोला था कि मेरी गाड़ी पे क्लियर है, कोई FIR कुछ वगैरह नहीं है। तो अब जो ये FIR वगैरह निकल आई तो इस प्राइस में मैं गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कल को अगर ये गाड़ी मैं बेचूंगा तो मैं उस बंदे से झूठ तो नहीं बोलूँगा कि भाई
मेरी गाड़ी पे एक पुरानी FIR थी जो चोरी हो गई थी, अब गाड़ी रिकवर हो गई और इसका सेकंड रजिस्ट्रेशन नंबर से ये गाड़ी दोबारा रजिस्टर्ड हुई है। तो मैं तो उसे सच बोलूँगा, आप तो मुझसे झूठ बोले तो वो लाजमी बात है, अगला बंदा फिर इस प्राइस में तो मुझसे नहीं लेने वाला। तो मैंने कहा अगर आप प्राइस की कीमत, गाड़ी की कीमत कम करोगे तो मैं सोचूंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं ले रहा हूँ। वो भी नहीं कम कर रहा था। मैंने कहा बस ठीक है, आपने मेरे से झूठ बोला है, बयान आपको वापस करना पड़ेगा। अगर आप वापस नहीं करते तो हम किसी और बंदे से बात करते हैं, थर्ड सालिस के वो जो डिसाइड करेगा मुझे मंजूर है। अब मुझे पता था कि वो लड़का गलती के ऊपर है, उसे भी पता था। तो वो मुझे पहले बड़ी इधर उधर की, वो एक अपने साथ एक बंदा और भी लेके आया था, उसका रिलेटिव गाड़ियों का काम कर रहा था, और ये लड़का खुद भी गाड़ियों का काम कर रहा था। ये उसने 15वीं गाड़ी ये बेच रहा था, ये हमारे साथ फिल्में कर रहा था। अब ये मुझे कहता है, वो कहते नहीं कुछ नहीं होता, मैंने ये, उसका मामा भी कह रहा था हमने 3 साल पहले एक गाड़ी इस तरह हुई थी तो फिर चोरी हो गई थी, फिर हमने बेच दी थी और ये कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई 3 साल 5 साल वाली बातें छोड़ो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे से बात छुपाई, मुझे तो बात रात को पता चल गई। अगर मैं पता ना करता तो इसका मुझे नहीं पता होना था, और कल मैं गाड़ी बेचता तो ये तो बिकनी भी नहीं थी, ये 9 की कहाँ बिकनी थी, ये तो 7 की भी बड़ी मुश्किल से बिकनी थी। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है आपके, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, नुक्स है। तो ये नुक्स तो कि तो पैसे मैं ये आपको एक्स्ट्रा नहीं देने वाला हूँ, वो तो क्लियर गाड़ी के मैं आपको पैसे दूंगा। एनीवेज उसे भी समझती कि भाई अगर सालिस के पास जाएंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। तो बार कैफ उसने मुझे वो जो टोकन मनी थी वो वापस कर दी, गाड़ी हमने वापस होके वापस आए। अच्छा, इस टोकन मनी से पहले हम लोगों ने ऑलमोस्ट उधर भी बात करते हुए डील फाइनल कर दी थी। दोस्त वगैरह ने कहा कि गाड़ी ठीक है। मुझे फिर भी दिल में थोड़ा सा वो था कि मैंने कहा यार ये गाड़ी के अंदर है, मैं अगर कल बेचूंगा तो कल मसला करेगी। अच्छा, मेरे साथ 2 दोस्त गए, एक ने भी अपने एक दोस्त को कॉल किया बारगेन वाले, दूसरे ने भी बारगेन वाले को कॉल किया, और दोनों बारगेन वाले ने यही जवाब दिया कि भाई गाड़ी से पीछे हो जाओ, मतलब है ना लो ये वाली गाड़ी जिसमें आपको ये चीज़ जो आप लोगों ने बता रहे हो तो इस हिसाब से ना लो। जब ये बात ही की है, मैंने कहा ठीक है अब चीज़ फाइनल हो गई है, गाड़ी वापस करो। हमने गाड़ी वापस कर दी, मतलब एक डील वो डील से वापस हो गए, उन्होंने हमें पेमेंट वापस कर दी। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि गाड़ी लेते हुए एहतियात करें, हर लिहाज से क्लियर हो, डॉक्यूमेंट्स वाइज क्लियर हो, और FIR वगैरह ये इन चीज़ों का स्पेशली ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया, क्योंकि हमारी नीयत ठीक थी, तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो अभी भी मैं गाड़ी की सर्च में हूँ, अच्छी गाड़ियाँ नहीं मिल रही, अभी ऐसे बुरे हालात चल रहे हैं ना, ये जो मार्केट में अनसर्टनिटी आई हुई है ना, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, हर चीज़ तबाह व बर्बाद हुई है। लोग गाड़ियाँ बेच नहीं रहे, और अगर कोई बेच रहा है तो वो इस तरह अजीब व गरीब वाली गाड़ियाँ हैं। तो बस दुआ करें। एक चीज़ मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अगर फ्यूचर में कोई गाड़ियाँ ले रहे हो तो आप इन चीज़ों का ख्याल। वैसे डिटेल से मैं कुछ वीडियोस बताऊंगा, जब मैं अपनी गाड़ी लूँगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप लोग जब गाड़ी लेते तो बॉडी वगैरह में क्या चीज़ देख के गाड़ी सेलेक्ट किया करें, फिर डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, एक न्यू डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और दुआ करें मेरे लिए कि कोई अच्छी गाड़ी मेरे हाथ आ जाए। स्टे ब्लेस।